वालेकुम अस्सलाम उमर, क्या हाल है आपके? I'm good. I'm good. Thank you so much for taking out time. It's a long-awaited conversation that I have to do. So you got an idea, Kiar, the main reason of having these gupshup session is to get as much knowledge from industry professional. क्योंकि आई थिंक ग्रोथ की सही सबसे अच्छी डेफिनेशन सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि यू फॉलो पीपल हु आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ ठीक है आई एम हैप्पी टू नो दैट you are doing also good in your life. So before we start the overall conversation about क्या चीज़ है किस तरीके से you can introduce yourself, क्या कर रही हैं आजकल, how's everything, how's life going, and then we start the conversation. Right. Okay, so I'm Mariam Bimal, as you all know. I am currently running my business, Zoe by Mariam Hassan, which is basically a fashion brand which I started off in 2019. It's going great, Alhamdulillah. Apart from that, I have also been working as on another business, which is Pen Women Association, which I started like I think 10 years back. I've been doing content writing from so long, and then eventually I started hiring writers under my supervision, and then we did a lot of work for many companies in Pakistan, like Boundless Technology. We did it for Cybrid MD, many of them. Nowadays, I myself is doing script writing for it's a very nice and a very famous YouTube channel named as WT. If you follow them, I don't know if you do or not, but I will. I don't, but I will, inshallah. ah, okay, you should, and I'm doing their script writing, so it's so far it's been great. So अगर मैं Being an entrepreneur, अगर मैं कंपाइल करूँ तो Mariam is doing a lot of things ठीक है and I'm happy to see that girls like you doing a lot of things trying to find different mediums to get an exposure for that ठीक है. yes. So you said that you are running your own business ठीक है and I think this is one of the dream of every student जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं और जब आप बैचलर्स में होते हैं तो आप हर बंदा ये सोचता है यार मैं एंटरप्रेन्योर बनना है मुझे मैं इस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करूंगा हाँ, फूड फैशन समथिंग लाइक दैट ठीक है. सो बिफोर वी गो कि आप अभी वो कैसा चल रहा है how this idea generated like I'm pretty much sure you have done your graduation, you are working good in different companies, but how this overall started because a lot of people do have this उनके पास प्लान होता है, बट वो कभी एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते। you don't execute कि it. Yeah, right. और मुझे But ऐसा लगता है कि एग्ज़ीक्यूट ना करने का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है पाकिस्तानियों में, वो ये होता है कि उनको ये ऐसा लगता है कि यार वो हर किसी से पूछते हैं कि यार इसके अंदर क्या चीज़ बेहतर हो सकती है, इसके अंदर क्या चीज़ बेहतर हो सकती है और हर बंदा आके अपने हिसाब से चीज़ें बता रहा होता है, ठीक है? टेल मी अबाउट योरसेल्फ फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्टेड? हाउज़ एवरीथिंग व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ? well, when I started off, if I speak about the Pen Women Association, which I started like 10 years back, honestly, मैं बताऊँ तो आपकी लाइफ में हाँ, I recently gave a session at SMIT, and over there I mentioned the girls. There were 100 plus girls over there, so it was a great strength and it was a wonderful session with them. I specifically mentioned them that you know ये बात बड़ी कॉमन है और कही जाती है हमारे देसी कम्युनिटी में स्पेसिफिकली दैट आपके हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है राइट दैट्स प्रीटी कॉमन टू से मैं ये बात कहती हूँ कि समटाइम्स औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ हो सकता है एंड दैट दिस इज ट्रू मेरी लाइफ में ऐसा ही हुआ माय फादर हैज बीन a biggest support for me हर चीज में अगर मैं इनिशिएट करूँ ना तो बहुत पहले लाइक व्हेन आई वाज 11 year old गर्ल मैं बिकॉज हम नॉवेल्स पढ़ते थे और मुझे वो चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल्स बड़ी फैसिनेट करती थी आई सेड मुझे तो राइटर बनना है बड़े होके ठीक है एंड मैंने वो स्टोरीज एक स्टोरी लिखी अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड पे इट वाज़ सच अ ऐसा टॉपिक था कि अगर मैं किसी को भी बताऊँ ना जाके दे दे वुड लाफ एट मी कि ये क्या लिखा था तुमने? लेकिन वो मैंने लिखी एंड उसको कंप्लीट किया बड़े इंटरेस्ट से आई वाज़ 11 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम। तो मैंने पापा को बुलाया एंड आई शोड हिम कि आई हैव रिटन दिस स्टोरी सो आप देखें कैसी है वो। सो उन्होंने देखा
and he knew that I always wanted to, publish it maybe somewhere. So आउट ऑफ नोवेयर एक दिन अर्ली मॉर्निंग ऑन संडे मैं अपने बाबा के साथ निकली टू बाय ब्रेकफास्ट और रास्ते में हमने एक न्यूज़पेपर वाले बैठे होते थे तो उनके पास रोका बाबा ने कहा इनसे एक अखबार ले लो मैंने ले लिया डॉन एंड मेरी आदत थी कि जैसे ही डॉन हाथ में आता था सबसे पहले हम यंग वर्ल्ड्स खोलते थे यंग वर्ल्ड्स मैगजीन आई थिंक वो एज ऐसी होती है वही आपको सबसे फैसिनेट कर रहा होता है एंड यू वोंट बिलीव इसको खोलते ही मैंने देखा कि पर मेरा नाम लिखा था, मेरी स्टोरी मेंशन थी और मेरी पूरी स्टोरी पब्लिश कराई थी मेरे पापा ने। इट सेड बाय मरियम जमाल। वो मोमेंट मेरी ज़िंदगी का ऐसा मोमेंट है कि इट्स प्रेशियस एंड इट्स सो 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 स्पेशल फॉर मी। बिकॉज़ वो आई थिंक वो जो बेंचमार्क होता है ना, वो उधर से जो है ना वो सेट कर दिया था मेरे पापा ने मेरे लिए कि आई कैन डू इट। आई कैन डू एनीथिंग इन माय लाइफ। वो जिससे मुझे काम करना है, हाँ, मैं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती? या जो मेरी ख्वाहिश है, मैं उन्हें पूरा कर सकती हूँ। एंड दैट्स व्हाट आई डिड। आई मैं हमेशा से ही थोड़ी-सी इस चीज़ में फ़ोकस्ड रही हूँ, करियर ओरिएंटेड होना, ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर इनबिल्ट होती हैं, ठीक है? मेबी आप किसी को देख के वो चीज़ें ज़्यादा ले रहे होते हो। दिस इज़ ऑल ऑफ कोर्स एनर्जी होती है ये सारी आपके आस-पास। समटाइम्स ये आपके अंदर बिल्ट इन होती है। तो ये चीज़ थी हमेशा से मुझ में एंड आफ्टर दैट व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ विथ माय बैचलर्स आई थिंक ड्यूरिंग माय फर्स्ट ईयर मैंने जो है ना ये चीज़ सर्च करने की कोशिश की पर हाउ कैन आई अर्न व्हाइल बीइंग ऑनलाइन? अच्छा ये उस टाइम पे लाइक बैक देन ये मैं आपको 2011 और 12 की बात बता रही हूँ। इस टाइम पे ये चीज़ें इतनी इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी पाकिस्तान में कि हम ऑनलाइन बैठ के अर्निंग कर सकते हैं ये सब चीज़ें। तो बट मुझे क्योंकि हमेशा से था इसका शौक था तो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट और देयर आई फाउंड अ वेबसाइट नेम्ड एज skillpages.com उसका नाम चेंज हो गया इट्स इट्स bark.com के नाम से अब तो वहाँ से मैंने जो है ना ये काम राइटिंग के जो थे ना वो करने शुरू किए एंड and then luckily the the first person I met uh his name is Saad bin Murtaza. He's still on my LinkedIn. uh, he taught me so much. He taught me so much about content writing. I wrote reports, I wrote so many things. एंड जब मेरी फर्स्ट अर्निंग आई थी, जब मेरे पास ऑनलाइन ट्रांसफर हुए थे एंड मैंने जाके पापा को बताया था, तो वो बड़े हैरान हुए थे। वो तो वैसे खुद हेड ऑफ आईटी है अभी, लेकिन ये है कि वो यही कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ हो सकती है इस तरह से। तो असल में एआई के साथ-साथ जैसे आप बड़े होते हो ना, तो अभी जैसे आपने बताया था कि यू ऑलवेज़ नीड मेंटोर्स इन योर लाइफ, जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हों, जो कि आपको हेल्प आउट कर रहे यस, हों, बिकॉज़ यस, 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 समटाइम्स गुड, गुड। समटाइम्स यू एज़ एन इंडिविजुअल डोंट हैव एन आइडिया कि यार आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप किस तरीके से चीज़ें कर सकते हो। ईदर वो बचपन में स्टोरी लिखना हो या बड़े होके किसी प्लेटफ़ॉर्म पे जाना हो, बट यू नीड टू हैव मेंटोर्स इन लाइफ, ताकि आप उनसे सीख सकें रियल लाइफ में। एंड यस, 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 एंड आई थिंक अब मीडियम काफ़ी चेंज हो गया है, बट मुझे मैं लोगों से बात कर रहा होता हूँ, तो लोग कहते हैं कि नहीं यार, अब वो चीज़ें वैसे नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ मीडियम चेंज होता है, ठीक है? ये आई स्टिल रिमेंबर द टाइम, येस, वी डू मिस दैट टाइम जब न्यूज़पेपर आया करते थे घर में। अब आई एम प्रीटी मच श्योर अब न्यूज़पेपर बहुत कम हो चुके हैं। अब बहुत आई कम। आई नो कि यार, मुझे पता था कि मेरे अब्बा जो है सुबह 8 बजे से लेके साढ़े 8-9 बजे तक जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है? और न्यूज़पेपर इज़ नॉट ओनली अबाउट कि वो सिर्फ़ बड़े पढ़ते हैं, उसमें बड़े सेक्शंस होते थे यार। उसमें आई स्टिल रिमेंबर कि उसमें से हम कटिंग करके रख लेते थे कि आप ओके फाइन, ये नया वर्ड आया है तो ये चीज़ देख लीजिए। देयर माइट बी सम न्यूज़पेपर के अंदर, उसके अंदर स्क्रैबल्स आते थे और उनके अंदर अलग-अलग गेम्स आते थे, बच्चों की कहानियाँ आती थी। तो वो एक 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 ना मीडियम था जिसमें ना एक
फैमिली की तरह आप रह सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो मीडियम तो चेंज हो रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ ना उसकी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। जैसा आपने बोला, आई एम हैप्पी टू सी कि यार लोगों का इस इतना इंटरेक्शन होता है अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। बट व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि वो ना टू साइडेड होता है। पहले माँ-बाप उतना करते हैं और फिर बच्चे भी उतना ही कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद कुछ नहीं कर रहे और फिर बाद में आप एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि मैं अपने हम अभी जैसा आप भी इससे देखते होंगे कि पहले हम ये सुनते थे जब हम छोटे होते थे कि यार अगर आपको इंग्लिश सही करनी है, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है? या हाँ, फिर वो हाँ, आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल। फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होकर हो गई थी कि भाई आपको इंग्लिश सही करनी है, आप इंग्लिश मूवीज़ देखो, ठीक है? अब मुझे लग रहा है कि अब वो जो गैदरिंग होती है, जो पेरेंट्स और बच्चों के अंदर वो था ना, क्योंकि अब बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि बच्चे बता नहीं पाते अपने माँ-बाप को, ठीक है? अच्छा, एक तो ये बैरियर है, दूसरा ये बैरियर है कि देयर देयर इज़ अ वेरी 360 शिफ्ट अगर मैं कोरोना के बाद से बात करूँ, ठीक है? वैसे आपने बात करी कि माँ-बाप को इसलिए शौक होते हैं वो ये जान के कि अच्छा फ्रीलांसिंग भी कोई चीज़ है, कोई कंटेंट लिखने के पैसे देता है, क्योंकि उनको वो चीज़ नहीं पता, ठीक है? और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है ना वो गलत फ़ील्ड सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो वो कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आप ये चीज़ क्यों कर रहे हैं? भई मेरे अम्मी ने कहा या मेरे अब्बू ने कहा। मैंने कहा देखिए मेंटोर्स जो है ना वो आपको स्पेसिफिकली फ़ील्ड के होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जैसे आपने जिनका बात करी जो साद हैं, अब वो स्पेसिफिकली उस फ़ील्ड से थे तभी तो वो आपको सिखा सकते हैं, वरना वो कैसे सिखाते? हाँ, एग्ज़ैक्टली और ये वही वाली बात है ना समटाइम्स यू आर लकी इनफ टू मीट सच पीपल इन लाइफ जो आपको वो ट्रैक दे दें और वो आपको सिखाते जाएँ, उस पे बताते जाएँ। क्योंकि जब आप इनिशिएट करते हो कोई भी चीज़ आप जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, वेदर इट्स अ स्टार्टअप, वेदर एनीथिंग, तो उस स्किल को आप शुरू से नहीं जानते होते। वो स्किल करने से ही आप उसमें स्किल्ड होते चले जाते हो। तो ये तो फैक्ट है, यू लर्न विद टाइम और फिर उसके बाद जब मेरा फाइनल ईयर आया तो फिर आप ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी में आप बिज़ी होते चले जाते हो। तो मैंने फिर इसके बाद अपने साथ 1-2 राइटर्स हायर किए अपने अंडर एंड फिर उसके बाद जो है वो इट वेंट ऑन। हमने बहुत काम किया, बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी कंपनीज़ के लिए काम किया पाकिस्तान की एंड इट्स नॉट दैट कि मैंने जो है वो अपवर्क या फाइवर से ही कमाया है। नो, 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 नो। मैंने अपवर्क या फाइवर पे तो अभी तक वहाँ से तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सबसे ज़्यादा जो मैंने फ़ोकस किया ना वो अपने पाकिस्तान की कंपनीज़ पे करती थी मैं या अपने यहाँ के क्लाइंट्स पे करती थी प्राइवेट अच्छा, मुझे क्लाइंट्स पे। एक चीज़ बताइएगा मरियम बस इसमें मुझे एक चीज़ बताइएगा, जैसे ना हमने फ्रीलांस को ना बेसिकली डिवाइड कर दिया। फ्रीलांस का मतलब है अपवर्क, फाइवर इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम करना। या जैसे आप भी या द या जैसे आपने कहा ना कि यार देखें इंटरनली भी बहुत सारे लेकिन उसके लिए होता ये है कि आपको अपना आउटरीच बढ़ाना पड़ता है। आपको क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी को पता थोड़ी चलेगा कि भाई मरियम हसन नाम की कोई लड़की हैं, वो कहीं पे रहती हैं और उनके पास जाके वो काम कराना है, तो आपको आउटरीच बढ़ाना पड़ता है। तो मुझे बताइएगा जब आप बिल्कुल। इनिशियली आपने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करी, जब आपने अपना बिज़नेस का हुँ। सोचा, तो आप क्या सोचते हो कि थ्रू हुँ। आउट योर एक्सपीरियंस अब आप काफ़ी सालों से बिज़नेस रन कर रही हैं, काफ़ी सालों से काम कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये कुछ की स्टेप्स हैं जो लोगों को लेने चाहिए व्हेन दे स्टार्टिंग देयर ओन वेंचर? फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आउटरीच कैसे बढ़ानी चाहिए? और अब तो मुझे ऐसा लगता है अब चीज़ें बहुत आसान है। अब लिंक्डइन है। बहुत आसान है। यस, अगर मैं कहूँ मैं मरियम जमाल से मिला कैसे? आई सर्च फॉर प्रोफाइल्स ताकि मैं देख सकूँ कि यार कौन-कौन से डिफरेंट प्रोफाइल से हम बात कर सकें ताकि लोग उनसे सीख सकें। इसी तरीके से आप कनेक्शन बिल्डिंग बढ़ाते हैं। व्हाट डू यू थिंक व्हाट आर द की स्टेप्स जो आपको लगता है कि यार इनिशियली आपको इन चीज़ों पे मेहनत करनी चाहिए? यार बात ये है दीज़ आर लाइक 2 डिफरेंट थिंग्स। अगर हम फ्रीलांसिंग वाले काम में और उस वेंचर के बारे में बात करेंगे तो दैट्स वेरी डिफरेंट हुँ, और एक बिल्कुल वो स्टार्टअप जैसे एक मैंने फैशन ब्रांड का रखा तो वो इट्स वेरी डिफरेंट। ये दोनों हुँ, बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? अगर हम उस पे बात करें कि जो फ्रीलांस वाली चीज़ है, तो यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल। आपने अपना जो काम आपने लिया है, जो काम अब तो आपको बहुत सारे जॉब पोस्ट मिल जाते हैं, बहुत आसानी से हर जगह जॉब पोस्टिंग्स हो रही हैं। आपको एक दफ़ा भी अगर काम मिल गया ना, आप इनिशिएट आपने कर दिया, तो बस उसके बाद इट्स ईज़ी टू गेट द अनदर क्लाइंट, इट्स ऑलवेज़ ईज़ी। इनिशियली हमेशा आपको कम प्राइस पे ही करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने आप को अंडर प्राइस शो करो, नो। हुँ, बट व्हेन यू नीड वर्क आपको शुरू कम से करना आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज़ डूइंग ऑन
आई थिंक 0.2 रुपी, 0.25 रुपी पर वर्ड, ठीक है? ऐसे काम शुरू किया था। फिर इवेंचुअली बढ़ते-बढ़ते 2 रुपी पर वर्ड, 3 रुपी पर वर्ड, 5 रुपी पर वर्ड, ऐसे भी हमने काम किया। सो ये बहुत टाइम होता है, और फिर वो क्यों हमें 2 रुपी या 5 रुपी पर वर्ड पे करेंगे? उन्हें तो 0.5 रुपी में भी कोई ना कोई मिल जाएगा अभी भी। क्यों? इसलिए क्योंकि दे नो कि हम इतना काम कर चुके हैं कि वो उसके लिए अब पे करेंगे, उस एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम दूसरे वेंचर की बात करें, दैट इज़ अ फैशन ब्रांड जो मैंने 2019 में स्टार्ट की, तो अगेन मैंने ये चीज़ तो फैक्ट है जो आपने मुझे मेंशन किया ना कि लोग घबराते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करें, हम ये कैसे करें। नहीं, ये जो चीज़ है ना, ये दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो आपको हमेशा कोई भी रिस्क लेने से रोकेगी, ठीक है? एंड विदाउट बीइंग अ रिस्क टेकर आप कुछ भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। और मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि क्या चीज़ हो सकती है, लाइक मैक्सिमम क्या क्या हो जाएगा? नहीं चलेगा, मतलब एटलीस्ट चले क्या हो जाएगा? मैक्सिमम नहीं चलेगा, हो ठीक। जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। मैक्सिमम नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, आप इनिशियली जब आप काम स्टार्ट करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू पुट 50 लैक्स इन इट, नो। आप मुझे ऐसा इनिशियली तो 1-2 लाख में ही काम मुझे शुरू करना मुझे है ना? मुझे ऐसा लगता है ये लोगों के अंदर ना एक और छोटी-सी प्रॉब्लम होती है, और ये मैंने खुद भी फेस करी जब ये मैंने गपशप सेशन स्टार्ट करा, तो ना इंसान को ऐसा लगता है कि यार हर चीज़ जो है ना वो परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? अब मैं पिछले ऑलमोस्ट 5-6 साल से प्रोडक्शन और सीजीआई, मोशन डिज़ाइन, ये सारी चीज़ों में रह चुका हूँ रिलेटेड टू प्रोडक्शन डिज़ाइन, तो मुझे पता होता है कि भाई दीज़ आर द फील्ड, यार इनको इस तरीके से करना है। अब आप जब हम इसमें होते हैं ना, तो हम ये सोच रहे होते हैं कि यार हम भी कंटेंट जब प्रोड्यूस करेंगे हमारे लिए, तो वो भी वैसा दिखना चाहिए, ठीक है? और लोगों को ऐसा लगता है, लोगों की मोटिवेशन वहाँ कम होती है जब लोगों को ऐसा लगता है कि वो आज कुछ बनाएँगे और कल उनको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? नहीं, तो बात सबसे अच्छी चीज़ ये होती है स्टार्टिंग करने की कि आप उसमें कोई भी गलती कर लेते हैं, क्योंकि कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा होता। नोटिस तो आपको तब करते हैं ना जब आप कोई बहुत अच्छा ब्रांड बन जाएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं सोच सकता हूँ कि हाँ भाई, मरियम जमाल कुछ भी लिखने से पहले 2 मर्तबा सोचती होंगी, क्योंकि लोग उनको देखते हैं, लोग उनको फ़ॉलो करते हैं, लोग उनसे एडमायर होते हैं। ठीक है? लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपको कोई इनिशियली कोई फ़ॉलो भी नहीं कर रहा, तो आप अपनी मिस्टेक से सीख सकते हो। अगर मैं सोच अगर आप किसी भी कंटेंट राइटर, आप किसी भी स्क्रिप्ट राइटर, आप किसी भी बंदे से पूछेंगे ना, तो उसने इनिशियली स्टार्ट करा होगा, और आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आपके पास अभी भी वो स्टार्टिंग का कोई काम रखा हुआ होगा जो आपने स्टार्टिंग ऑफ द करियर में करा होगा, आप वो सोच के देख के हँसते हो कि यार ये काम करने के किसी ने पैसे दिए मुझे, और ये काम मैं करती थी। लेकिन ग्रोथ की डेफिनेशन ही यही है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती है। सही बात है। एग्ज़ैक्टली वो इसी तरफ, जैसे मैंने वो कहा ना मेरी स्टोरी जो मैंने 11 ईयर ओल्ड ने लिखी थी, मैं तो सुन के सोच के हैरान होती हूँ कि मैंने ये क्या टॉपिक बनाया था। दिस इज़ सो स्टूपिड, अपने बारे में खुद सोच रही होती हूँ। लेकिन वो मेरे लिए बड़ी स्पेशल है क्योंकि वो मेरा राइटअप था सबसे पहला। ये बिल्कुल अच्छी ये बात तो है, ये बात जी। तो दैट दैट कम्स टू अनदर पॉइंट कि यार ये बात तो ठीक है, जैसा अभी हमने मेंशन करा ना कि लिंक्डइन इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? लेकिन लोगों में ना थोड़ी-सी ना लिंक्डइन को लेके मुझे ऐसा लगता है थोड़ी-सी मिसकंसेप्शन है। लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छी लिंक्डइन का मतलब ये है, अच्छी प्रोफाइल पिक्चर, अच्छा कवर, ठीक है? हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको इस तरीके से देखना चाहिए। मैं अगर हमारी बात भी करूँ, जस्ट फॉर द ऑडियंस, मैं मरियम और मेरी बात करूँ, ठीक है? आप किसी बंदे को किस तरीके से अप्रोच करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? एंड आई एम प्रीटी मच श्योर यू हैव सीन दैट साइड ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे हम रोज़ देख रहे होते हैं लिंक्डइन पे मैसेज, हाय हेलो के मैसेजेस आए हुए होते हैं, और ये और वो, और स्क्रीनशॉट आए हुए होते हैं, ठीक है? बट उसकी परसेंटेज कितनी है? 1%, 2%, बाकी 90% पीपल आप कम्युनिकेट करने के लिए हैं, आप ग्रोथ के लिए। अब आपको ये देखना होता है कि आप उनको रीच आउट कैसे करना है, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ ये मैंने देखी है लोगों में, एक और सबसे बड़ा मसला होता है, लोग कहते हैं हम 100 जगह अप्लाई कर रहे हैं, हमें कहीं से जवाब नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है हुँ, कि आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, सही है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक नॉर्मल सी बात करूँ, मरियम कल आप पोज़ीशन ओपन करें, तो आई एम प्रीटी मच श्योर सुबह जब आप उठेंगी तो आपके पास 1000 रिज़्यूमे आएँगी। अब यस या दैट्स तो ट्रू। या तो आप उन 1000 कमेंट्स का रिप्लाई करेंगी, या तो उन 1000 रिज़्यूमे को रिव्यू करेंगी। अब इंसान को अप्लाई करते वक़्त ये भी सोचना चाहिए कि मैं जिस जगह अप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ मेरे साथ और बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। तो जहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, पहली चीज़, क्या मैं सही
रिसोर्सफुल, क्योंकि आई एम प्रीटी Yeah. मच श्योर फॉर एग्जांपल अगर अगर आप इंग्लिश में कंटेंट लिखती हो तो आई एम प्रीटी मच श्योर आप अरेबिक कंटेंट राइटर के लिए अप्लाई थोड़ी करेंगी, क्योंकि वो आपका फोटे ही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है, लोगों को ना ओवर कमिट करना बहुत पसंद हो जाता है। मैं सीवीयां देखता हूँ, सीवी होती है क्रिएटिव कंटेंट राइटर की, उसके अंदर ग्राफिक डिजाइनर और पता नहीं क्या क्या होता है। आपको क्या लगता है, सही बात। आपको क्या लगता है, बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आपको क्या लगता है यार कि कौन से ऐसी चीजें हैं, एक अगर लिस्ट बनाए आप 3 4 5 चीजों की, कि यार इन चीजों को फॉलो करना चाहिए बिफोर, क्योंकि आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपसे शायद ही बंदा 99% ना मिले, 1% वो आपसे कनेक्ट करेगा और वो 1% में ही फैसला करेगा कि ईदर ही और शी गोना टॉक टू यू और नॉट। ठीक है। राइट। आपको क्या लगता है मरियम, थ्रू आउट योर एक्सपीरियंस, कि यार इन चीज़ों पे मेहनत करनी चाहिए, पर्सनल ब्रांडिंग हो गई, आप किस तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं, किस तरीके से रीच आउट कर रहे हैं, कोई एनी 5 6 पॉइंटर्स बताएंगी आप लिंक्डइन को लेकर, ओवरऑल पर्सनैलिटी को लेकर, ओवरऑल प्रोफाइल को लेकर? लिंक्डइन को लेकर तो मेरा ख़्याल है ये जो पॉइंट था ना कि आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर अच्छी होनी चाहिए। अब मैं इस चीज़ को वो नहीं कहती कि बहुत अच्छी और अपनी कोई डिफरेंट किस्म की होनी चाहिए। बट या इट शुड बी डिसेंट एंड प्रोफेशनल मे बी। ये एक पॉइंट है कि हाँ, शायद ये होना चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी डिसेंट पिक्चर हो, एक प्रोफेशनल पिक्चर हो मोस्ट ऑफ ये। एंड दूसरी बात ये कि जो भी काम आप कर रहे हैं व्हाटसोएवर, कितना ही वो इनिशियल है, वो कुछ भी है, you need to post it on your LinkedIn. You have to update it that you are doing this thing. ऐसा नहीं है कि मुझे फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट मिला एक कंपनी से और वो बस एक जैसे हमें जेड इंटरनेशनल स्कूल है कराची में, उसके उसका जो सबसे पहला इंटरव्यू डॉन में पोस्ट हो रहा था उनके सीईओ का, तो वो हमने लिखा था, ठीक है? तो या एक दफ़ा आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जो है, उन्होंने हमसे एक दफ़ा एक आर्टिकल लिखवाया था, वो कंटेंट पोस्ट हुआ। सो नाउ अब वो चीज़ मैंने लिखी है, ठीक है? तो अब वो चला गया। अब मैं चाहूँ तो मैं कहूँ यार क्या ही तो एक ही आर्टिकल था हुआ, व्हेदर आई पोस्टेड ऑन माय लिंक्डइन और नॉट, कोई मैं इनके साथ कनेक्टेड तो नहीं हूँ ना इवेंचुअली काम के लिए आ रही हूँ। लेकिन नहीं, आई डू वांट टू पोस्ट इट, आई वांट टू पोस्ट इट, आई विल पोस्ट इट बिकॉज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू नो कि नहीं मैंने ये पीस ऑफ आर्टिकल भी लिखा है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ माय करियर। हर हर छोटी से छोटी चीज़ जो है ना वो आपके करियर का पार्ट होती है। एंड इनफैक्ट मैं एक बात बताऊँ कि मैंने उस दिन ये चीज़ रियलाइज़ की कि मैं ये सोचूँ कि यार मेरा मैंने कौन-सा इतना बड़ा कोई काम किया है, मैंने कौन-सा इतना बड़ा ब्रांड खड़ा किया है या कुछ भी है, हाँ। लेकिन जब मैं बहुत सारे लोगों में बैठती हूँ और जब मैं उनसे बात करती हूँ ना एंड आई टेल देम लाइक दिस, नॉट दिस, नो, 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 दिस इज़ द थिंग, यू शुड रीच आउट लाइक दिस, यू शुड डू दिस मार्केटिंग। तो तब मुझे अंदाज़ा होता है कि नहीं, आपका एक्सपीरियंस वाक़ई आपको बहुत कुछ सिखा रहा होता है। यू कीप लर्निंग, यू कीप डूइंग। देयर मस्ट बी सो मेनी थिंग्स दैट आई नो एंड दे डोंट बिकॉज़ आई हैव already experienced that failure. Yeah, I have already experienced that winning point. ठीक है? मुझे पता है बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप करते हैं व्हेन यू हैव अ ब्रांड। मैंने बहुत पहले की 2019-20 में बहुत उस टाइम पे बहुत स्मॉल बिज़नेसेस तब इतने ज़्यादा नहीं होते थे। तो अब आई रिमेंबर कब कब मुझे 1-2 दफ़ा बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज़ आए, ठीक है? एंड कब ऐसा भी हुआ दैट बाद में जाके आई हैड टू पे और मुझे रिस्पॉन्स बिल्कुल निल आया। देन आई गॉट टू नो कि यार ये तो मतलब मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी दिस मीन्स दिस टाइम, मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी, मैंने गलत इवैल्यूएट किया। तो दिस हैपेंस मेनी टाइम्स बट ये सारे पॉइंट्स हैं कि हमें इन चीज़ों को देख के रखना चाहिए कि हमारा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो भी काम करें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन यू शुड ऑलवेज कनेक्ट विद पीपल ऑन लिंक्डइन जो कि आपके स्किल के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है? आपके स्किल के साथ रिलेट करते हैं, यू नीड टू कनेक्ट विद देम। सेंड देम अ कनेक्शन रिक्वेस्ट, स्पीक टू देम, मे बी नॉट मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप बड़ी कन्वर्सेशंस लिख के उन्हें भेजें, नो। बट येस, यू कैन लेट देम नो दैट हाय,
this is Mariam. I am a content writer. I'm been doing this. And if you need my services, you can let me know anytime. You stuff like this. This is also again very important. ये चीज़ें सब बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अ, इन सब पॉइंट्स को जॉट डाउन करें और इन पे हम वर्किंग करें। योर प्रोफाइल स्पीक्स मोर अबाउट यू दीज़ डेज़ मोर देन योर रिज़्यूमे। रिज़्यूमे आपका बाद में देखा जाएगा, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पहले देख ली जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से या तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड देन व्हेन यू आर इन द इंडस्ट्री, आप लिंक्डइन पे हैं, आप बहुत सारे लोगों से, फाउंडर्स से, सीईओ से कनेक्टेड हैं, तो ऑटोमेटिकली दे नो अबाउट यू, दे विल रीच यू आउट। ये आपको ये अपनी आप बहुत आपको अपनी आउटरीच तो बढ़ानी पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जहाँ पे ना मैं लोगों से पूछ रहा होता है, लोग मुझे रीच आउट करके पूछ रहे होते हैं कि हम तो स्टूडेंट हैं, हम अभी ग्रेजुएट हुए हैं, या हमारे पास इतना पोर्टफोलियो, हम क्या पोस्ट करें। मुझे ऐसा लगता है कंटेंट या अपने आप को आउटरीच करवाना इज नॉट अबाउट जस्ट टू मेक अ फैंसी पोस्ट और जस्ट टू मेक अ फैंसी राइट अप। ठीक है, इट्स अबाउट कनेक्शन, ताकि लोगों को पता हो कि यार आप एग्जिस्ट करते हो। हाँ, समटाइम एग्ज़ैक्टली। समटाइम समटाइम इन माय लाइफ ऑल्सो ऐसा हुआ है कि एकदम से कॉल आई और उन्होंने कहा कि हमें ये काम कराना है, और जब मैं उससे पूछता हूँ आपको कहाँ से मेरा पता चला, वो कहते हैं यार हमने 6-7 महीने कोई काम पहले आपका एक काम देखा था, हमें याद था और अब हमें ना उस सेम काम की ज़रूरत है। ठीक है? और हाँ, कभी-कभार ऐसा होता है कि अगर आपकी आउटरीच ज़्यादा होती है तो ऐसा हो सकता है कल को मुझे कोई कंटेंट राइटर की ज़रूरत पड़े किसी दोस्त को मेरे, तो मन को बोले यार मरियम से लिखवा लेते हैं। और इसी तरीके से आपकी यस, कनेक्शन बिल्डिंग बनती है। ठीक है? अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल। वर्ड ऑफ माउथ, वेरी एक और इम्पोर्टेंट। एक और चीज़ इंडस्ट्री के अंदर जो है दैट इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है? अ, लेट्स टॉक समथिंग रियल अबाउट इट, क्योंकि ये कहने को अच्छा है कि सही है भाई, होनी चाहिए। ऐसा है, हो भी रहा है, नहीं हो रहा ये कोई नहीं पता। ठीक है? वी आर स्टिल ऑन द पॉइंट कि जहाँ पे मैं 20-30 हज़ार रुपए में डिज़ाइनर की ओपनिंग्स देख रहा होता हूँ। 20-25 हज़ार में कंटेंट राइटर की ओपनिंग देख रहा होता हूँ। हाउ कैन अ पर्सन कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जो कि इकोनॉमिकल सिस्टम अभी आपका चल रहा है। ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ ये है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ना लोगों ने थोड़ी-सी ना डेफिनेशन गलत ले ली है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि अगर मरियम के पास पैसे आ गए, ठीक है, तो मरियम अपनी लाइफ में जो दिल चाहे वो करे। ठीक है? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब वो वक़्त नहीं है कि जहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लोग हैं, वो शादीशुदा हैं, तो मियाँ काम करे और बीवी कुछ ना करे और घर सही चल रहा हो। इफ यू वांटेड टू प्लान योर लाइफ, इफ यू वांटेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि यार आपको अपने फाइनेंस मैनेज करना पड़ता है। ठीक है? हमने अभी अगर मैं नॉर्मल सी बात करूँ, हमारे अम्मा-अब्बा में से हमारे अब्बा कमाते थे, पूरा घर चल रहा होता था। फिर एक वक़्त आया तो ऐसे है। फिर एक वक़्त आता है जब आप कमाने लगते हो और आपको ये डाउट होने लग जाता है यार कि मेरे अब्बा वो काम कर कैसे पा रहे थे? क्योंकि मेरे पास भी सेम सैलरी है, वही लोग हैं, उतना ही पेट है, उतना ही खाना खा रहे हैं, उतने ही कपड़े पहनते हैं, लेकिन हाउ दे आर मैनेजिंग इट, क्योंकि इंडस्ट्री चेंज होती है। तो मुझे अपने हिसाब से बताओ मरियम, कि आफ्टर वर्किंग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विद मल्टीपल क्लाइंट्स, आई एम प्रीटी मच श्योर यू आर नाउ फाइनेंशियली स्टेबल, बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? और व्हाट आर द की फैक्टर्स जो आपको लगता है कि यार ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ज़रूरत होती है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप ₹2 की जगह ₹10 कमाने लग जाओ। ठीक है? मतलब ₹10 ऐसे कि मतलब जो चीज़ आप ₹2 की कर रहे हो, आप ₹10 में बेचने लग जाओ। ठीक है? ऐसा होता है क्योंकि सही बात है। क्योंकि क्योंकि अंडर क्योंकि प्राइस है। ज़्यादातर क्या होता है, एक तरफ अंडर प्राइस है, एक तरफ ओवर प्राइस है। किसी को ये नहीं पता कि हमें अपने रेट को लेके कैसे चलना है। ठीक है? जैसा आपने अभी बोला ना बिल्कुल, कि यू स्टार्टेड विद ₹0.25, या या नाउ यू आर मे बी राइटिंग फॉर ₹5 और ₹4, लेकिन किसी को या अच्छा, हर किसी को ये देखना है 0.25 और 0.4, उसके बीच की जो जर्नी है ना वो किसी ने नहीं देखनी कि वो बहुत नफ़ी है। हाँ, वो आपने कैसे करी है, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में आपने ये भी देखना होता है कि आप अपने ऊपर कितना अपना इन्वेस्ट कर रहे हो। लोगों को ऐसा लगता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कि आपको एक ही काम है, आप बार-बार वही करते रहोगे, आप पैसा कमाते रहोगे। नहीं, यू नीड टू बी अपडेटेड ऑन दैट थिंग। आई एम प्रीटी मच श्योर कंटेंट राइटिंग में ऐसा नहीं है कि आप बगैर कोई रिसर्च के, या अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, एक नॉर्मल सा खर्चा लैपटॉप, ठीक है? ठीक है, आप इनिशियली बहुत छोटी चीज़ से स्टार्ट करते हैं।
अब ज़ाहिर-सी बात है, जब आप इनिशियली अपने काम को ऊपर करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाएँगे, आप अपने एफर्ट्स को कम करेंगे, ताकि यार कम से कम टाइम में ज़्यादा से काम प्रोड्यूस करना शुरू करें आप, ताकि आपकी ग्रोथ 2x, 3x, 4x पे बढ़े, ठीक है? So what do you think, बिल्कुल what is सर। financial independence for you? What's the real meaning of financial independence in Pakistan for women? फॉर मी फॉर मी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आई मीन लाइक अगर मैं बहुत इनिशियल स्टेजेस की बात करूँ ना, जब मैं बिल्कुल 10 women स्टार्ट किया या खुद कंटेंट राइटिंग स्टार्ट की, तब तब तो लाइक बैक देन तो खुद हम बैचलर्स में थी, तो मुझे ये होता था कि व्हाई नॉट अर्न मोर फॉर माई सेल्फ। पॉकेट मनी तो पापा से मिलती थी, बट अगेन आप इट्स नॉट दैट आई थिंक ये वाली जो चीज़ होती है ना, खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का अपना जुनून, वो अलग होता है लोगों के अंदर। पीपल डू गो एंड आस्क देयर पेरेंट्स के मुझे तो यहाँ जाना है अपने दोस्तों के साथ, आई नीड मनी, अब मुझे दे दें, मुझे ये लेना है, मुझे पैसे दे दें। एंड क्योंकि माँ-बाप को तो फ़र्ज़ होता है अपनी औलाद के लिए, सो वो बेचारे करते ही हैं, हमेशा करते हैं। लेकिन क्योंकि मैं मुझे हमेशा से था कि व्हाई डू आई नीड टू गो एंड आस्क माय डैड एवरी टाइम? मतलब क्यों नहीं मैं खुद से कुछ कर लूँ, खुद से क्यों नहीं कर सकती? वो वाला जो पॉइंट था ना, उसने मुझे इस अर्निंग वाली स्टेज पे लाया कि अब मेरा दिल चाह रहा है मैं ये भी कर सकती हूँ, अब मेरा दिल चाह रहा है मैं ये भी ले सकती हूँ। तो वो सारी जो आपकी ख्वाहिशात होती हैं, आप उसके लिए ये वाली अर्निंग्स कर रहे हो, तो बहुत इनिशियल स्टेजेस में। बट देन फिर इवेंचुअली जब आगे आप बढ़ते चले जाते हो, तो फिर तो आपके पास यू हैव टू बजट सो मच अपने घर को चलाने के लिए, यू सो मेनी थिंग्स कम ओवर इवेंचुअली। लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लड़कियों के लिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, चाहे आप ईदर यू आर मैरिड और नॉट। खुद से अर्निंग करना, अपने लिए खुद कमाना, नॉट आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम योर हस्बैंड, फ्रॉम योर फादर एवरी टाइम, वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों हम किसी दूसरे के ऊपर ही इम्पोज़ करें हर चीज़ को ना, कि हमारा हमारी क्योंकि ऑफ कोर्स पापा भी तो घर चला रहे होते हैं, या आपके हस्बैंड भी तो पूरा घर चला रहे होते हैं, तो मेबी हम बाकी चीज़ों के लिए खुद भी अर्निंग कर सकते हैं। मेबी उनको हेल्प आउट करने के लिए भी हम कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि मैंने अपने लिए ये चीज़ खरीदी है, वो चीज़ खरीदी है, सो दैट्स व्हाई आई एम अर्निंग, नो। समटाइम्स दिस इज़ आल्सो अ हेल्प फॉर देम एंड नाउअडेज़ ये जो टाइम है, इसके अंदर तो इट्स लाइक you both have to earn. आप हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैव टू अर्न, यू हैव टू स्टे टुगेदर, तो ही आप अच्छी लाइफ गुजार सकते हो, एक अच्छी स्टेबल लाइफ थोड़ी। गुड एडवाइस, गुड या एडवाइस। या आई थिंक लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ बॉय, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि आप आई थिंक इनिशियल लेवल पे आप जिन फैमिलीज़ को देखते हैं, जो कि जिन जिन कपल्स को देख रहे होते हैं, जो जो लोग अपनी फैमिली के साथ-साथ स्ट्रॉन्गली उन चीज़ों को लेके चलते हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में हर बंदे का स्टार्ट सेम नहीं होता। और आपको ये चीज़ बिल्कुल। सोचनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा इनिशियली 1 लाख रुपए की सैलरी से स्टार्ट करे। ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा कॉम्पिटिशन तो यूनिवर्सिटी में ही शुरू हो जाता है। आप 40 बच्चों की क्लास में सही 40 बात। बच्चे के 40 बच्चे ग्रेजुएट होंगे और 40 तो नौकरियाँ भी नहीं है। अब अगर आपको वहाँ पे सक्सेसफुल होना है, तो आपको वहाँ से याद होना चाहिए, यार मुझे इनके अंदर अलग से आउटरीच करनी है अपने आप को, कि लोग इन 40 ने मुझे प्रेफ़र करें। फिर आप बाहर सही बात निकलते हो, तो है। आपको पता चलता है 40 नहीं, ये तो 4000 है। ठीक है? फिर आप पाकिस्तान से बाहर निकलते हो, आपको पता चलता है भाई 4000 नहीं, तो ये तो 4 लाख है। ठीक है? तो इसी तरीके से आपको एक्स्पोनेंशियली ग्रोथ करनी होती है। ठीक है? द लास्ट थिंग दैट आई बिल्कुल, वांटेड टू दैट्स ट्रू। डिस्कस मरियम इज़ कि you have you have worked for different mediums, ठीक है? You have done PR, you have done content writing, you have done मल्टीपल चीज़ें थी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सारी चीज़ें, ठीक है? वेबसाइट का कंटेंट देख लिया, वेबसाइट की नॉलेज हासिल कर ली। बिफोर 2020, 2019 कोरोना से पहले चीज़ें बहुत अलग तरीके से थी। पहले मुझे ऐसा लगता है कि पहले ऐसा लगता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज़ नॉट समथिंग, क्योंकि पाकिस्तान में अब ये ना बहुत डिबेटेबल टॉपिक हो गया। पाकिस्तान में लोग कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा, डिज़ाइनर्स कहते हैं कि भाई डिज़ाइनर्स हायर कर रहे हो, तो और कहते हैं वीडियोग्राफी आनी चाहिए, फोटोग्राफी भी आनी चाहिए, ये भी आना चाहिए, हाँ, बर्तन हाँ। धोने आने चाहिए, खाना ट्रू, पकाना आना ट्रू, चाहिए। ट्रू, ट्रू, ट्रू। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप
ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखें ना, आपको बुरा लग रहा है, आप नहीं करेंगे और वो बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि जिसकी जो चीज़ जो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग हायर कर रहे हो, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करो, अगर कोई और चीज़ हायर करनी है, कोई और चीज़ हायर करो। बट अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखें, जो लोग ये हायर करें ना, उनको लोग मिलेंगे, जो ये सारे काम करके उनको दे रहे होंगे। उन्होंने किसी ने ये एक्सपेक्टेशन सेट करी है, तभी उनको पता है कि वो 30वां बंदा ढूँढ लेंगे। I was discussing with one of an HR in Pakistan. She was hiring for सीनियर रिसोर्स और उसकी जो सैलरी थी वो 40,000 रुपए थी। मैंने कहा अगर सीनियर की 40 है तो आप जूनियर को देते क्या हो या जूनियर से बोलते आप आ जाओ और हम आपको आप हमें पैसे दो, ठीक है? एक तो ये चीज़ है। हुँ। दूसरी ये चीज़ है कोरोना के बाद से चीज़ें चेंज हुई। आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड में फ़ायदा होने लगा क्योंकि हमने देखा कि अगर आपको अपना बिज़नेस रन करना होता है, इट्स नॉट अबाउट लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ भाई ठीक है, हम कंपनी स्टार्ट करते हैं और लिख देते हैं यार फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एक्सवाईज़ेड कंपनी, ठीक है? बट द मेन प्रॉब्लम इज़ कि जब आप बिज़नेस रन कर रहे होते हैं ना, तो आपको काम करना आना चा आने का करना आए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको काम करना नहीं भी आता, तो आपको ये बताना चाहिए कि वो किस तरीके से हो सकता है। क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों से काम कराना होता है, ठीक है? आपको क्या लगता है कि यार मल्टीपल मीडियम्स को टच करने से आपकी ग्रोथ पे कैसे फ़र्क पड़ा? ठीक है, आपने स्क्रिप्ट राइटिंग करी, आपने थोड़े टाइम जो है वो कहीं बिज़नेस में काम करा, आपने कहीं पे किसी और कंपनी में काम करा, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग देखी, आपने जो है वेबसाइट कंटेंट मैनेजमेंट देखी, तो सबको जो आपने ये क्योंकि वही जो अपनी कॉल से पहले मैं बात कर रहा था आपसे कि यू डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ठीक है? लोगों को ऐसा लगता है कि यार लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है भाई, जैसे कंटेंट राइटर्स क्योंकि ना कंटेंट राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, ग्राफिक डिज़ाइन जो ये जो जॉब पोज़ीशंस थी एआई आने के बाद सबसे पहले जो मसला हुआ था वो इनको ही हुआ था। क्योंकि हमने यही सुना था बिल्कुल। कि भाई एआई आ जाएगा और इनकी जॉब्स चली जाएँगी। आफ्टर अ व्हाइल हमें पता चला कि इनकी जॉब्स नहीं जाएँगी, उनकी जॉब्स जाएँगी जो इनको यूज़ करके अच्छी चीज़ें नहीं बना पाए, ठीक है? बिल्कुल, सो एग्ज़ैक्टली दैट्स हाउ इज़ योर ओवरऑल एक्सपीरियंस वर्किंग फॉर डिफरेंट मीडियम्स, हेल्प यू टू ग्रो योर बिज़नेस? एनी टिप्स एंड एडवाइस टू द ऑडियंस लड़कियों को बताना चाहेंगी, लड़कों को बताना चाहेंगी कि यार ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं? That's the last question that I wanted to discuss. ओके, ओके सी इट्स नॉट लाइक कि आप अंडर प्राइस किसी के लिए काम करो कि ना आपको वीडियो ऑब्वियसली फिर वो सब कुछ आ रहा है और आप कहोगे ओके मैं आ जाता हूँ एंड आई डू इट नो इट्स नॉट लाइक दिस मेरे अकॉर्डिंगली ये गलत है। हाँ, अगर आप उससे फिर भी सब काम कराना चाह रहे हैं तो यू नीड टू पे देम 40,000 के बजाय 1 लाख रुपए कि नो तुम अगर इतना काम कराना है तो फिर यू शुड पे फॉर इट। बट एनीवे अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने अपने बिजनेसेस होते हुए ठीक है मैंने जो है ना वो अपना जॉब भी करी है। ठीक है, I worked at Sara for some time. I did at Honda Power Products. So it's always great. You learn more and more eventually. आपको पता है कि मैंने जब साया में थोड़े टाइम ही काम किया, लेकिन while I was working there because I was handling their PR and social media, तो उसने भी उस थोड़े टाइम पीरियड में जो मैंने लर्निंग की कुछ ना कुछ मैंने वहाँ से सीखा और वो होता क्या है इवेंचुअली आपका जो अपना काम है ना वो उसमें आपको फायदा करता है। ठीक है, आप यू यू गेट टू नो पीपल, आपके कनेक्शंस बन जाते हैं। ये चीजें आप सीख रहे हो तो हाउ टू डील विद देम, ये सब कैसे करना है। और क्योंकि मैं अपना बिजनेस भी करती होती हूँ तो मैंने उसमें भी फिर उस चीज को इम्प्लीमेंट किया और वो मेरे लिए हमेशा अच्छा रहा है। एंड देन अपने बिज़नेस से भी आप इतना एक्सपीरियंस हासिल कर रहे होते हो साथ-साथ कि आप जब आगे कहीं जॉब के लिए दोबारा जाते हो, तो यू आर नॉट लाइक आप तो बस घर बैठे थे। नो, यू हैव बीन इन द मार्केट, मेबी नॉट इन द कॉर्पोरेट बट यू न्यू एवरीथिंग बिकॉज़ यू हैव बीन डूइंग योर ओन थिंग। तो इट्स ऑलवेज ग्रेट एंड अपनी फैशन ब्रांड बनाने का ख्वाहिश होना बस मुझे शौक है। वो वाली बात है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे कपड़े बनाना वाली बात एंड कंटेंट राइटिंग की जहाँ तक बात थी और उसको आगे राइटर्स हायर करके लेके चलना, इट वाज़ अ स्किल। आई वांटेड टू बी अ राइटर, सो दैट्स व्हाई आई टूक दिस थिंग। और जो अब जो आगे जाके काम किया सोशल मीडिया का, पीआर का किसी कंपनी में, तो क्या हुआ वो इवेंचुअली मुझे हेल्प आउट कर रहा है, मेरे अपने ब्रांड को रन करने में भी कहीं न कहीं। बिकॉज़ दे आर स्मॉल बिज़नेसेस
So they do work like this, they do run like this. ये आपके साथ आपके एक साइड बिजनेस की तरह चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। इवन इफ आप एक ऑन जॉब हैं, आप कहीं काम भी कर रहे हैं, आपके साथ आपके क्लाइंट्स जो आपके बन जाते हैं, दे स्टे विद यू। वो इसी तरह से आपके साथ चलेंगे। So it's always great. Uh, whichever skill you have, you apply to it and you work on it. Nowadays, मैं अपना अब एक लिंक्डइन पे इंशाल्लाह होपफुली एक पेज बना रही हूँ दैट वुड बी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ एशिया के नाम से वी एशिया. So in which I would want to feature all the women entrepreneurs of Pakistan and in the Asia because I really like this thing. I really like to empower women and मुझे अच्छा लगता है अगर कोई अपने लिए काम करता है, अगर कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है, जो इतनी मेहनत करके और कुछ कमा रहा है, इट्स ऑलवेज़ नाइस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग। एंड मैं अपने अपने फ्रेंड्स को भी या कोई मुझसे एडवाइस लेता है तो आई ऑलवेज़ टेल देम, व्हाई कांट यू डू इट? व्हाई डू यू थिंक ये ऐसे होगा, ये फेल हो जाएगा? नहीं, यू ट्राई, यू स्टार्ट डूइंग इट। आप कुछ भी स्टार्ट करो, अगर आप में उस चीज़ को करने का शौक है, ख्वाहिश है, यू विल बी एबल टू डू इट, व्हाई नॉट? वो वाली बात है, व्हाई नॉट? Perfect, perfect. So I think कीप द राइट स्ट्रैटेजी, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। I think we have discussed a lot of good pointers और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। It's not about what you're getting, it's about what you are learning, and throughout your process you will start earning good. So I think we have discussed a lot of good pointer, Mariam. Thank you so much for your time. I'm pretty much sure people will gonna learn a lot of good things from this session, and if they have any queries they can reach out to you on LinkedIn. Just for the audience, if you want to reach out to Mariam, please don't say hi, hello. आप पूरा का पूरा सवाल लिखें और पूरा का पूरा क्वेश्चन भेजेंगे तो I'm pretty much sure Mariam will always be here for help you guys. So thank you so much, Maria. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session. थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू।